Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Nutrition and Animals. Food is a source of energy that is required by all living organisms for growth, repair and proper functioning of the body. Everybody knows that कि food जो है source of energy है हमारी growth के लिए, repair के लिए, proper functioning के लिए हमारी body के. It is very important. Introduction. The trillions of cells that make up the body need energy. Even at rest, a cell needs energy to stay alive. Any form of work, such as the contraction of a muscle, adds to the body's energy requirements. In order to meet its energy needs, the body must be able to use the energy stored in eaten foods. Food, however, is more than just an energy source. At every moment of life, body tissues are being repaired and rebuilt. New cells are being formed to replace damaged or aged ones. Food, along with oxygen and water, are the raw materials the body utilizes for growth and repair. In the previous chapter, you have learned about how various plants obtain nutrition by various modes. Animals depend on plants and other animals' food. In this chapter, you will get to know about nutrition processes and animals. देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ा था इन प्लांट्स एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल्स. अब देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है ना, और उसके बाद उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है तब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टे अलाइव. तो कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क हो, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्शन है मसल का, राइट, तो इससे क्या होता है कि बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है. तो इस एनर्जी नीड को मीट करने के लिए आप बॉडी को क्या करना है कि उसको एनर्जी सप्लाई करना है ना. हालांकि आपका जो फूड है आपका एक एनर्जी सोर्स, मतलब इट्स नॉट ओनली अ एनर्जी सोर्स, इट्स मोर देन जस्ट एन एनर्जी सोर्स. हर मोमेंट ऑफ लाइफ पे बॉडी टिश्यूज आपके रिपेयर होते हैं, रीबिल्ट होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, डैमेज होते हैं, जो वर्न आउट आपके सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं आपके, राइट. तो फूड आपका ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ और कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स के साथ बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए. 2.1 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. We know that plants are autotrophs as they make their own food. Like plants, animals are not able to make their own food. In fact, they depend on plants and other animals for food. Hence, they are called heterotrophs. We obtain food such as wheat, rice, vegetables and fruits from plants. We get milk products, eggs and meat from animals. Living beings that obtain food from plants are called herbivores. Human beings that obtain food from both plants and animals are called omnivores. Nutrition is the process of taking in food and breaking it into simple and soluble form which can be easily absorbed by cells. अब देखिए प्लांट्स, आपको पता है प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जबकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. अब देखिए लिविंग बींग्स जो अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं वो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, ओके. और आपके ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल दोनों से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं. सो दे आर ओमनिवोर्स. न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है आपका कि फूड को टेक इन करना, फिर वो आपका सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में आपका वो ब्रेक हो जाता है जिसको हमारे जो सेल्स है वो इजीली एब्सॉर्ब करते हैं. 2.2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जिनकी बात की थी. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेपरोट्रॉपिक. Earlier, we have studied about saprotrophic and parasitic types of nutrition. Like plants, these are the same in animals. Let's now study about holozoic nutrition. अच्छा देखिए अब heterotropic जो nutrition है वो आपके 3 types में है. Parasitic and separo जो tropic nutrition है वो आपका same था जैसे plants में था. तो अब हम holozoic के बारे में पढ़ते हैं. So let's get started. Holozoic nutrition. The word holozoic is derived from 2 words. Holos means whole and zoikos means animal. The mode of nutrition in which solid particles of food are taken in is called holozoic mode of nutrition. Most animals, including human beings, take solid food into their body by the process of ingestion. अब देखिए
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो फूड के लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर एनिमल्स जिसपे हम ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं वो सॉलिड फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन मीन्स टू टेक इन द फूड, ओके। The ingested food is then broken down or digested into simpler substances which are finally absorbed into the cells of the body. The undigested and unabsorbed part of the body is thrown out of the body by the process of ingestion. The human beings and most animals such as cat, cattle, dog, fish, amoeba, etc. have holozoic mode of nutrition. अच्छा देखिए, इंजेशन आपका हो गया, जैसे फूड को टेक इन किया, फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है फॉर डाइजेशन। उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है ना फूड का, उसको बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, सो देखिए ये आपके जितने भी एनिमल्स हैं ज़्यादा इनमें क्या है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2.3 न्यूट्रिशन अमीबा। Amoeba make up one of the simplest groups of protozoans. Although some amoeba are visible to the unaided eye, most are microscopic. The amoeba moves slowly in a moist environment by extending its cell membrane and cytoplasm. This extension is called a pseudopodium or false foot. When the pseudopodium is fully extended, it pulls the amoeba along with it. देखिए आपका क्या होता है कि अमीबा कुछ ऐसे होते हैं जो आपके नेकेड आई से देख सकते हैं आप, बट ज़्यादातर आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप देख सकते हैं। तो आपके जो अमीबा है वो स्लोली मूव करता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। कैसे करता है कि ये एक्सटेंड करता है इसके सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में, और इस एक्सटेंशन को कहा जाता है सूडोपोडियम। ये जो सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। जब सूडोपोडियम फुली एक्सटेंडेड हो जाता है ये अमीबा को पुल करता है अलॉन्ग विद इट। न्यूट्रिशन। Unicellular animals like amoeba feed on microscopic plants and animals. All the process of nutrition are performed by its single cell. These are as follows. अब क्योंकि अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो सिंगल सेल है वो जितना भी प्रोसेस है न्यूट्रिशन के वो सारे परफॉर्म करेगा, राइट। नंबर 1 इज इंजेशन। द अमीबा यूजेस इट्स सूडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड. As it nears a small piece of food, it extends its pseudopodium and surrounds the food, forming a cup-like structure as shown in figure 2.2. Yeah, this is the shape, cup-like shape, right? The cup-like structure forms a food vacuole in the cell. This way, food is taken inside the cell. This method is called phagocytosis. अमीबा देखिए फूड के इंजेशन के लिए अपने सूडोपोडिया का यूज़ करता है, राइट। ये देखिए क्या करता है कि अपने जो सूडोपोडियम को एक्सटेंड करता है और फूड को सराउंड करता है। ये एक कप शेप इस तरह से बना लेता है। देखिए किस तरह से फूड को इसने सराउंड किया है। इस तरह से जो है फूड उस सेल के अंदर आ जाएगा, राइट। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड phagocytosis. Number 2, digestion. The food vacuole releases special digestive chemicals called enzymes to break down captured food into small and soluble molecules. The digestion takes place inside the food vacuole. अब आपका फूड का इंजेशन हो चुका है, राइट। अब जो फूड वैक्यूल है वो स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल को रिलीज करेगा जिसे कहते हैं एंजाइम, जो कैप्चर्ड फूड को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन. The digested food is then absorbed directly into the cytoplasm by diffusion. This food then spreads to the whole of amoeba cell. After absorption, the food vacuole vanishes. अब देखिए जो डाइजेस्टेड फूड है आपका ये आपका डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में बाय डिफ्यूजन। फिर ये जो फूड है स्प्रेड हो जाएगा पूरे अमीबा सेल में, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड वैक्यूल है ना वो गायब हो जाता है, वैनिश. Number 4, assimilation. Amoeba utilizes the absorbed food for 2 purposes. One part of the food is used to obtain energy through respiration and the other part is utilized for its growth. अब देखिए फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है तो अमीबा जो है इस एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करता है 2 पर्पस के लिए. एक तो उसको जो पहला पार्ट होता है फूड का उसको यूज़ करता है वो टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, एंड जो दूसरा पार्ट होता है अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है. Number 5, digestion. Once the nutrients have been absorbed, the waste products, the undigested food, carbon dioxide and excess water are thrown out. These 5 steps show how a single cell does multiple tasks of ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अब देखिए जो न्यूट्रिएंट्स अब एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज egestion.
तो देखा आपने किस तरह से आपका अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, और एक सिंगल सेल जो है वो मल्टीपल टास्क कर रहा है, मतलब इंजेशन भी कर रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. 2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. The cells of the body need energy to stay alive. In order to meet energy needs, the body must be able to use the energy stored in the eaten food. Unfortunately, most foods that are eaten cannot be used directly by the body and so must undergo digestion. Digestion is a process that breaks down food into simple substances. The breaking down of food is a work of the digestive system. अच्छा देखिए, जो ज़्यादातर हम खाना खाते हैं ना उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है बॉडी, ओके, तो इसीलिए सबसे पहले उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि फूड जो ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत ही सिंपल फॉर्म में, सिंपल एंड सॉलेबल फॉर्म में, जिससे बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है. डाइजेस्टिव सिस्टम. In the following sections, you will follow a mouthful of food through the digestive system. Number 1, the mouth. Sometimes when you see your favorite food, your mouth generally waters. This occurs because the mouth contains salivary glands which produce and secrete a liquid known as saliva. It helps to moisten the food. It contains a chemical substance called ptyalin which breaks down some of the starches in the food into sugars. It also helps in breaking down of food into simpler substances. Now, think of a sandwich. As you bite into it, the incisors of front teeth cut off a large piece. Here, the flat-headed premolars and molars or back teeth grind and crush it into small pieces. At the same time, the canines or eye teeth tear and shred the food. This process of breaking down the food physically is called mastication. Sometimes you spit out food because it tastes bad. The tongue has taste buds present on its surface which help in distinguishing various tastes: sour, salty, sweet or bitter. Apart from identifying tastes and helping in chewing, tongue also helps us to speak. अब देखिए, जब कभी आप अपना फेवरेट फूड देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माउथ में होते हैं salivary glands जो एक लिक्विड को सिक्रीट करते हैं which is known as saliva. ये फूड को मॉइस्चन करने में हेल्प करते हैं. इसमें आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है टाइलिन, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कुछ स्टार्च को जो फूड में आपका प्रेजेंट होता है इनटू शुगर. इसके अलावा ये फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है. ओके, अब आप एक सैंडविच के बारे में सोचिए. जब आप उसको बाइट करते हैं तो जो इंसाइजर्स हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं ना वो एक लार्ज पीस को कट ऑफ करते हैं, है ना. फिर इसके बाद जो फ्लैट हेडेड प्रीमोलर्स या मोलार्स होते हैं, ये जो आपके बैक टीथ होते हैं जिसको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं स्मॉल पीसेस में. एंड सेम टाइम पे आपके कैनाइन्स या आई टीथ होते हैं, वो फूड को टियर एंड श्रेड करते हैं. तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को फिजिकली ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मास्टिकेशन. कई बार हम खाना का अगर टेस्ट अच्छा नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके सरफेस में जो वेरियस टेस्ट्स को डिस्टिंग्विश करती है. मतलब कि कोई भी खाना सावर है, सॉल्टी है, बिटर है, राइट. इसके अलावा टंग का काम क्या है? टेस्ट तो आइडेंटिफाई करती है, साथ ही साथ वो च्यू करने में हेल्प करती है, हमको बोलने में भी हेल्प करती है. नंबर 2, ओसोफेगस और फूड पाइप. You chew the piece of sandwich a few times before you swallow it. After you swallow, smooth muscles force the food into a pipe-shaped tube called esophagus. It is a 25 centimeter long tube which transports food down to the stomach. As soon as food enters the esophagus, powerful waves of muscle contraction called peristalsis takes place, which help in the movement of food into the stomach. अब आपने खाने को चबाया, च्यू किया, तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि स्मूथ मसल फूड को फोर्स करेगा कि वो एक पाइप शेप ट्यूब में जाए, राइट, विच इज़ नोन एज एसोफेगस. आपके माउथ से जाएगा, जिसे फूड पाइप भी हम कहते हैं. ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है जो फूड को स्टमक में ट्रांसपोर्ट करती है. और जैसे ही आपका फूड जो है एंटर करता है एसोफेगस में, पावरफुल वेव्स होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जिसे बोलता है पेरिस्टाल्सिस, राइट. नंबर 3, द स्टमक. The stomach is a J-shaped organ connected to the end of the esophagus. It takes only a little time for you to bite the sandwich, chew and swallow it, and pass it down the esophagus.
However, from that point onwards, the process of digestion slows down considerably. अब देखिए आपका जो स्टमक होता है वो जे शेप में होता है, राइट? जैसे जे लेटर आपका बनता है ना, कैपिटल जे, तो इस तरह का आपका होता है स्टमक, राइट? अब देखिए आप फूड को जब खाते हैं, पहले उसको बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, देन वो स्वॉलो हो जाता है, आपके ओसोफेगस में जाता है, देन उसके बाद वो आपका जाता है स्टमक में. फिर यहाँ से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है. As the food enters the stomach, its cells are already releasing gastric juice. At the same time, nerves in the stomach becomes stimulated when food pushes against them and cause more gastric juice to be secreted, while the muscle contractions provide a kind of mechanical digestion. This mixes the food with gastric juice and breaks it into still simpler substances. Here, the second stage of digestion takes place. अब जैसे ही फूड ने स्टमक में एंटर किया, इसके जो सेल्स है वो ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर रहे थे. सेम टाइम पे जो नर्व्स होती है स्टमक में वो स्टिमुलेटेड हो जाती हैं जब फूड जो है इट पुशेस अगेंस्ट देम, और उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस और ज़्यादा सिक्रीट होते हैं. जबकि आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो एक तरह का काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन प्रोवाइड करते हैं. फिर ये फूड को मिक्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ, इसको और सिंपल सब्सटेंस में इसको चेंज करते हैं. तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज है ना डाइजेशन का, वो होता है. Number 4, the small intestine. The small intestine is a highly coiled tube-like structure which is an adult is about 6 to 7 meters in length. The third stage of digestion takes place here. The food from the stomach seeps into the small intestine little by little and may remain there for as long as 5 hours. Most digestions take place in the small intestine. The cells lining the intestinal walls release intestinal juice which contains several digestive enzymes. Digestive juices are also secreted by pancreas. The liver produces a fluid called bile which reduces fat in the food into tiny droplets. The end products of digestion in the small intestine are called nutrients. They are not ready to be absorbed into the blood. Digested food is absorbed through the walls of the small intestine where a network of blood vessels carries the nutrients to all parts of the body. अब जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, देखिए आपका फूड माउथ से गया एसोफेगस में, देन स्टमक में, देन वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये आपका हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एडल्ट में ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है लेंथ में, राइट? तो जो थर्ड स्टेज है डाइजेशन का वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है. तो आपका जो फूड स्टमक से वो सीप करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लिटिल बाय लिटिल, और वहाँ पे लगभग आपका रह सकता है 5 घंटे के लिए. ज़्यादातर जो आपका डाइजेशन है इट टेक्स प्लेस हियर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में. जो सेल्स होती हैं, सेल्स लाइनिंग होती हैं इंटेस्टाइनल वॉल्स में, वो इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करती है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. इसके बाद जो पेनक्रियाज है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं. लिवर भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज बाइल. ये क्या करता है कि फैट को रिड्यूस करता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, जो भी मतलब फैट्स आपके फूड में आपके होते हैं, राइट? अब जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अब क्या होता है कि अब न्यूट्रिएंट्स आपके बन गए, आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रिएंट्स है. अब वो रेडी हो जाते हैं ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए. डाइजेस्टेड फूड आपके एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के थ्रू, जहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक कैरी करते हैं. नंबर 5, द लार्ज इंटेस्टाइन. After absorption of the digested food, the content of the small intestine consisting mainly of undigested food material then passes into the large intestine in the form of a paste. Your water is absorbed from the undigested food. The undigested food is called feces. अच्छा देखिए, अब एब्जॉर्प्शन हो गया डाइजेस्टेड फूड का, है ना, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो अब जो भी आपका कंटेंट बचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा पेस्ट की फॉर्म में. अब यहाँ पे क्या होगा कि मोर वाटर इज एब्जॉर्ब, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है. बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज कॉल्ड फेकस, जो बॉडी से निकालना होता है. 2.5 डाइजेशन इन रुमिनेंट्स. Ruminants are animals with split hooves and a system of eating and digestion known as chewing the cud. Some such animals are sheep, cattle, goat, deer, etc. Most ruminants have 4 cavities in their stomach. These are the rumen or pouch, the reticulum or honeycomb, the omasum and the
abomasum, or more. Usually, a half-chewed mouthful of food is swallowed by a ruminant. This food passes down to the rumen where it is partly digested. From the rumen, the food goes to the reticulum where it is softened and changed into a small mass called cud. Interestingly, the cud is sent back to the animal's mouth where it is thoroughly chewed again and mixed with saliva. अच्छा, रूमिनेंट्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जिनके स्प्लिट हूफ्स होते हैं एंड एक आपका सिस्टम होता है ईटिंग एंड डाइजेशन का जिसे कहते हैं च्यूइंग द कट. तो ज़्यादातर ह्यूमंस के आपके जो रूमिनेंट्स होते हैं 4 कैविटीज़ होती हैं इनके स्टमक में. एक है आपका रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम. तो क्या होता है कि यूजुअली जो हाफ च्यूड माउथफुल ऑफ फूड होता है वो सॉलो कर लेते हैं. ओके फिर ये फूड जो है वो रूमेन में आपका पास होता है जहाँ पे ये डाइजेस्ट होता है बट पार्टली. फिर आपका ये जो रूमेन से फूड जाता है आपका रेटिकुलम में जहाँ पे ये सॉफन होता है और फिर ये एक स्मॉल मास में चेंज हो जाता है जिसे कहते हैं कट. फिर कट देखिए, कट वापस ये जो रूमिनेंट्स होते हैं एनिमल्स अपने वापस माउथ में ले आते हैं. फिर इसको ये थोरली च्यू करते हैं अगेन और फिर उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं. द कट इज सॉलोड वंस मोर पासिंग थ्रू द रेटिकुलम टू द ओमेजम एंड abomasum where stomach juices complete the process of digestion. No mammal is able to synthesize the enzyme that digests cellulose except ruminants, which digest it by harboring cellulose digesting bacteria and protozoa within the stomach due to unusual digestive tract. अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो कड है आपका वो एक बार फिर से वो सॉलो होगा, फिर वो पास करेगा रेटिकुलम से टू द ओमेजम एंड एबोमेजम जहाँ पे स्टमक जो है स्टमक जूसेस जो हैं डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. अच्छा, कोई भी जो मैमल है ना, नो मैमल इज एबल टू सिंथेसाइज द एंजाइम जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें एक्सेप्ट रूमिनेंट्स, वो इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं. राइट क्योंकि बिकॉज ऑफ इनका जो अनयूजुअल डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसकी वजह से. 2.6 types of teeth. Teeth are hard, bone-like growths in the upper and lower jaws of most vertebrate animals. Their task is to cut, break up, and chew food. टीथ आपको पता है, टीथ का काम क्या होता है? कट करना, ब्रेक करना, फूड को च्यू करना. राइट. ह्यूमन टीथ एंड देयर फंक्शंस. An adult normally has 32 teeth, 16 in each jaw. These teeth are of 4 main types. There are 8 incisors, 4 in each jaw. These are our front teeth, sharp and have chisel-like shape for cutting off pieces of food. Behind these are 4 canine teeth, one on each side. Both on the upper and lower have a fang-like shape for tearing food, especially meat. The other teeth, premolars and molars, break up food and chew it. Chewing movements cause the teeth to act like millstones and grind the food. An adult human being has 8 premolars and 12 molars altogether. The premolars are smaller and located in front of the molars. अच्छा, एडल्ट में ना नॉर्मली आपके 32 टीथ होते हैं, हर जॉ में 16, यानी 16 ऊपर वाले जॉ में एंड 16 आपके लोअर जॉ में. तो इसमें 8 इंसाइजर्स होते हैं आपके, 4 हर जॉ में होंगे. आपके फ्रंट टीथ, ये जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं ना पहले के 4 दोनों जॉज में, ये आपके होते हैं इंसाइजर्स. फिर इसके बाद आपके आते हैं कैनाइन, देन उसके बाद प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स. ये आपके ब्रॉड शेप टीथ होते हैं. एंड आपके जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को ब्रेक करते हैं, च्यू करते हैं. ओके. नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. Despite their varying shapes, all the teeth have the same basic structure. The part projecting up the gum is the crown. Embedded in the gum and reaching into a socket in the jaw bones is the root. The body of the tooth is made of a hard bone-like material called dentine, inside which the pulp cavity which contains blood vessels and nerves. Hard enamel covers the crown, but around the root is a layer of cement which holds the tooth firmly in place. Number 2, tooth decay. Food that is not removed from crevices in the teeth decays and produces acid that attacks the enamel. This is the first stage of tooth decay. Hence, it is most important to brush one's teeth regularly and to make regular visits to the dentist. अच्छा देखिए, टीथ का जो शेप से डिफरेंट है, जैसे इंसाइजर्स, कैनाइन है, प्रीमोलर्स, मोलर्स का, बट इनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है. जैसे जो पार्ट आपका गम के ऊपर है उसे कहा जाता है क्राउन, और ये क्राउन आपके गम में एम्बेडेड होता है जो कि एक सॉकेट पे पहुंचता है जो आपके होता है जॉ बोन में, वो आपका रूट.
फिर जो बॉडी होती है टूथ की एक हार्ड बोन लाइक मटेरियल से बनी होती है जिसे कहते हैं डेंटाइन। ये आपका होता है इनसाइड विच इज़ अ पल्प कैविटी, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, एंड जो हार्ड एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, क्राउन को कवर करते हैं। बट रूट के राउंड एक लेयर होती है सीमेंट की जो कि टूथ को फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं प्लेस पे। अब जैसे आपके टीथ के क्रेविक्सेस में कुछ फूड फंस जाता है और वो अगर रिमूव नहीं हुआ है तो वो डीके हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस करता है और इनेमल को अटैक करता है। तो ये पहला स्टेज होता है टूथ डीके का। तो इसीलिए टीथ को आपको प्रॉपर्ली और रेगुलरली ब्रश करना चाहिए और डेंटिस्ट के पास भी रेगुलर विजिट लेनी चाहिए। Number 3, milk teeth. We have 2 sets of teeth during our lifetime. Milk teeth, which appear between the first 6 to 24 months of life, and permanent teeth, which grow from the age of about 6 years until the 20s. अच्छा, हमारे 2 sets of teeth होते हैं। एक होते हैं milk teeth, जो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में होते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपके permanent teeth, जो आपके 6 साल से 20s तक आपके आते हैं। Key points. Food is a source of energy that is required by all living organisms for growth, repair, and proper functioning of the body. Most of animals have holozoic mode of nutrition. Holozoic nutrition means eating solid food. Remember that. Amoeba is a unicellular animal. All the process of nutrition are performed by its single cell only. Amoeba utilizes food for its energy and growth. Process of nutrition involves various steps like ingestion, digestion, assimilation, and egestion. Digestion is the process that breaks down food into simple substances. The digestive glands present in the human body are salivary glands, liver, and pancreas. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा and I hope आपको पता चला होगा किस तरह से न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में आपके ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में होता है। एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।